اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے ویڈیو میں نے نشے کے تعلق سے موبائل، شراب، بیئر، گانجا اور چرس اور مخصوص قسم کی گولیوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا۔ آج کے اس ویڈیو میں خصوصی طور پر سگریٹ، بیڑی، گٹکا، تمباکو، ان چیزوں کے نشے کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو آج بے تحاشا استعمال کی جا رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تک آج گٹکے کھاتے ہوئے اور سگریٹ پیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہر دکان پر آپ کو سگریٹ، تمباکو اور گٹکے ملیں گے اور لوگ بلا جھجک وہاں سے خرید کر بے تحاشا گٹکے کھا رہے ہیں اور سگریٹ پی رہے ہیں۔ اور حیرت تو اس بات کی ہے کہ اس کو برا بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، پھر چاہے وہ گٹکا ہو یا بیڑی ہو یا سگریٹ ہو یا تمباکو ہو، بے انتہا نقصانات اس کے ہمارے جسم پر پڑتے ہیں۔ اس کا ایک سب سے بڑا نقصان ہے ایک بہت ہی مہلک مرض، کینسر کا ہونا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کینسر یہ بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اس کی جو وجہ سامنے آ رہی ہے وہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے یہ گٹکے کا بے تحاشا استعمال اور سگریٹ کا استعمال۔ اس کی وجہ سے کینسر کے آج مریض بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ WHO نے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پچھلے دنوں ایک رپورٹ جاری کی تھی۔ اس نے بتایا کہ ملک میں ہر سال میں 1 کروڑ سے زیادہ افراد کینسر کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ 60 لاکھ سے زیادہ ایسے افراد کینسر کا شکار ہو کر موت کے منہ میں جا رہے ہیں جن کی عمر 50 سے کم کی ہے، یعنی 50 سال سے کم عمر کے، جنہیں ہم نوجوان کہہ سکتے ہیں، وہ کینسر کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ غرض کہ آج اس گٹکے کے استعمال نے اور سگریٹ کے استعمال نے کینسر کے اس مرض کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے، اور پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان اور بچے بے تحاشا گٹکا اور سگریٹ کا استعمال کر رہے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ گٹکے کے پوڑی پر یا سگریٹ کے پیکٹ پر ایک خطرناک قسم کی فوٹو ڈال کر یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے کینسر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے نوجوانوں کا یہ حوصلہ ہے کہ یہ فوٹو دیکھ کر بھی اور یہ وارننگ دینے کے باوجود بھی یہ گٹکا اور سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ کیسا عجیب حوصلہ ہے کہ ایک چیز تمہیں بتا رہی ہے کہ تم یہ کھانے کی وجہ سے موت کے منہ میں جا رہے ہو، اور پھر بھی آپ بے فکری کے عالم میں سرے عام گٹکے کی پوڑیاں ہوا میں اچھالتے ہوئے کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اسے ہم حوصلہ کہیں یا بیوقوفی کہیں، لیکن ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے نوجوان اس بیوقوفی میں شامل ہیں اور وہ بے تحاشا گٹکوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ کینسر کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے امراض ہیں جو گٹکے اور سگریٹ وغیرہ کی وجہ سے یا تمباکو کی وجہ سے جنم لیتے ہیں۔ دمے کا ایک ایسا مرض ہے جو سگریٹ کی وجہ سے اور بیڑی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پھیلتا ہے اور انسان اس کا شکار ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ جو لوگ گٹکا کھاتے ہیں یا سگریٹ پیتے ہیں انہیں کو بھوک بہت کم لگتی ہے، وہ زیادہ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں۔ پھر ان کے استعمال کرنے والوں کو کانسٹیپیشن کی شکایت ہوتی ہے، انہیں بیت الخلا صاف نہیں آتا۔ بہت سارے افراد آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے کہ جو بیت الخلا کے لیے جاتے ہیں تو یا تو سگریٹ پیتے ہیں یا پھر گٹکا توڑ کے منہ میں ڈالتے ہیں، اس کے بغیر انہیں بیت الخلا نہیں آتا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ اس کی وجہ سے، خصوصاً گٹکے کی وجہ سے، منہ میں چھالے آنا اور منہ آنا، یہ بھی شکایت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آپ گٹکے کھانے والے نوجوانوں کو دیکھیے کہ وہ تیز نہیں کھاتے، وہ تیز کھاتے ہیں ان کا برا حالت ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان گٹکا کھاتے ہیں ان کے منہ نہیں کھلتے، تھوڑا سا منہ کھلتا ہے، انہیں چمچ سے کھانا کھانا پڑ رہا ہے۔
लेकिन फिर भी अजीब बात है कि ऐसी जिंदगी होने के बावजूद भी नौजवान और बच्चे गुटखे खा रहे हैं, मुंह नहीं खुल रहा है, मुंह में छाले आ गए हैं, तेज नहीं खा सक रहे हैं, चम्मच से खाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी ये गुटखे है कि छोड़ते नहीं है, सिगरेट है कि छोड़ते नहीं है। कैसी यानी अजीब ये बात है कि नौजवान इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। फिर इसके साथ साथ आप देखिए कि गुटखा खाने वाले के अगर आप सेहत पर गौर करेंगे तो ये बहुत लागिर हो रहे हैं, दिन ब दिन दुबले हो रहे हैं, इनके गाल पिचके हुए हैं और इनका वजन दिन ब दिन कम होता जा रहा है। मुंह से अजीब किस्म की बदबू आती है इनके, कि इनके मुंह के बदबू की वजह से लोग दूर भागते हैं। मुंह के बदबू के ताल्लुक से एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स लहसुन और प्याज खाए वो मस्जिद में ना आए। इसका मतलब ये नहीं है कि लहसुन और प्याज की खाने की ममानियत कर दी गई है, नहीं, बल्कि लहसुन और प्याज खाने के बाद कुछ देर से तक मुंह से बदबू आती है, इसलिए कहा गया कि लहसुन और प्याज खाने के कुछ देर बाद तक मस्जिद इंसान ने नहीं आना चाहिए, ताकि उसके मुंह के बदबू की वजह से दूसरे लोगों को परेशानी हो और दूसरे लोग इसे नागवारी महसूस करें। तो फिर आप सोचिए, क्या ये हुक्म गुटखा खाने वालों के लिए नहीं है, सिगरेट पीने वालों के लिए नहीं है? लहसुन और प्याज से ज्यादा बदबू तो इनके मुंह से आती है। वो जो गुटखा खाया हुआ शख्स है, उसके उसके जो बगल में जो शख्स खड़ा हुआ है नमाज के लिए, उसे क्या परेशानी नहीं होती होगी इसके मुंह के बदबू से? लिहाजा हमारे नौजवानों को चाहिए या ऐसे अशखास को चाहिए जो गुटखा और सिगरेट पीते हैं वो इससे बचें। फिर इसके साथ साथ देखिए, इन बीमारियों के अलावा ये इससे बहुत बड़ी फजूल खर्ची हो रही है। कितने पैसे की बर्बादी हो रही है गुटखा और सिगरेट वगैरह खाने की वजह से। अगर हम बात इनको खाने की वजह से जो पैसे की बर्बादी की करें, फजूल खर्ची की करें, तो बियर और ये शराब को तो छोड़ दीजिए, इसको तो अलग ही रख दीजिए, इसमें तो बेतहाशा पैसे खर्च होते हैं जिसका हम हिसाब भी नहीं लगा सकते। अगर मामूली ये गुटखे, तंबाकू और सिगरेट का अगर हम हिसाब मारे, अगर एक शख्स है, एक नौजवान है जो रोजाना 50 रुपए के गुटखे खाता है या पूड़ी खाता है या सिगरेट पीता है, ये मैं कम से कम बता रहा हूं, वरना जो नौजवान सिगरेट या गुटखा वगैरह खाता है वो खुद इसका जायजा ले सकता है कि वो कितने पैसे रोजाना बर्बाद कर रहा है। हाँ, आप देखते होंगे कि एक एक खर्रे की कीमत कितनी ज्यादा है। तो अगर हम फिर भी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर 50 रुपए रोज के भी अगर ये पकड़े के एक नौजवान इसमें बर्बाद कर रहा है, तो एक साल के अगर पैसे का अगर हिसाब मारा जाए तो 18,250 रुपए वो नौजवान एक साल में ये गुटखे में और सिगरेट में बर्बाद करता है, रोजाना 50 रुपए के हिसाब से। आप फर्ज कीजिए कि ये नौजवान या ये शख्स 40 साल तक इस लत में मुब्तला रहा है और 40 साल तक ये इस्तेमाल किया, तो इन 40 सालों में वो 7,30,000 रुपए इसमें बर्बाद कर रहा है, इस नशे में। मुझे बताइए कितनी बड़ी फजूल खर्ची है ये कि 7,30,000 रुपए इसने 40 साल में बर्बाद करके रख दिए। और फिर कुरान में ये फरमाया गया कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के दोस्त होते हैं। और ये भी कहा गया कि आखिरत में इंसान से ये पूछा जाएगा कि पैसे कहां से कमाया था और कहां खर्च किए। जब अल्लाह ताला तुमसे ये 7,30,000 रुपए का सवाल पूछेगा कि तुमने इसे कहां खर्च किए थे, तो आप क्या जवाब दे सकेंगे कि मैंने इसको नशे में उड़ा दिया था? लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम इस पहलू से भी ये अपने आप का जायजा लें कि हम ये सिगरेट, गुटखे, बीड़ी, तंबाकू में कितनी बड़ी फजूल खर्ची कर रहे हैं और अपना मेहनत का कमाया हुआ कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। और फिर एक चीज ये कि फिर इन चीजों को हराम भी करार दिया गया है। शराब और बियर के ताल्लुक से तमाम उलमा इस बात पर मुत्तफिक है कि ये सरे हराम है, लेकिन जहां तक बात है गुटखे की, तंबाकू की, सिगरेट की, तो इसमें थोड़ा उलमाओं के बीच इख्तलाफ है। कुछ उलमा इसे हराम करार देते हैं और कुछ उलमा इसे मकरूह कहते हैं। अब जो उलमा इसे हराम करार देते हैं वो कुरान की इस आयत का हवाला देते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने आप को अपने हाथ से हिलाकत में मत डालो। उलमा कहते हैं कि इस आयत की रोशनी में गुटखा खाना, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना हराम है,
क्योंकि इंसान ये खाने से अपने आप को हलाकत में डाल रहा है। इस आयत की रोशनी में उलमा कहते हैं कि ये हराम है, और बहुत सारे उलमाओं का ये कहना है कि ये मकरूह है। लेकिन मकरूह के बारे में भी ये कहा जाता है कि इंसान बार बार लगातार मकरूह चीज इस्तेमाल करे तो हराम हो जाती है। मैं फतवा तो नहीं दूंगा, लेकिन हमें इसे हराम ही समझना चाहिए, और हराम समझते हुए ये एहतियात का पहलू है ये कि हम इसे हराम समझते हुए ही इस्तेमाल करना बंद कर दें। क्योंकि अगर ये वाकईतन हराम हो गई या हराम होगी तो हमारे लिए आखिरत में बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। लिहाजा इस एंगल से भी जो लोग इस नशे में गिरफ्तार है उन्हें सोचने की जरूरत है। फिर आखिर की में एक बात कि ये इन लोगों में इस लत में, इस नशे की लत में नौजवान कैसे शामिल हो रहे हैं और कैसा इसमें लिप्त हो रहे हैं। अगर इस पर गौर किया जाए तो दो चीजें हमें मिलती है। एक तो है खराब दोस्तों की सोहबत। जब इंसान ऐसे दोस्त सिलेक्ट करता है जो नशे के आदी है तो वो खुद ब खुद उनको देख देख कर नशे का आदी हो जाएगा। लिहाजा सबसे पहली बात कि ऐसे दोस्तों से हम दूर रहे, ऐसे लोगों को दोस्त ना बनाए, ऐसे बच्चों और ऐसे नौजवानों को दोस्त ना बनाए जो नशे के आदी है। फिर एक चीज है अपना खाली वक्त। ये खाली वक्त भी एक बहुत खतरनाक चीज है। जब इंसान खाली होता है तो शैतान उस पर हमलावर हो जाता है और शैतान उसे भड़काने लगता है, और खाली इंसान ही की सोच ही ऐसी चीजों की तरफ जाती है और वो खाली रहते रहते इस नशे की लत में गिरफ्तार होता चला जाता है। लिहाजा इन दो बातों पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। फिर इसके साथ साथ आखिरी में ये बात कि हम इससे कैसे बचें। सबसे पहली चीज तो वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें। वो देखें कि बच्चे क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किसके साथ रहते हैं, उनके दोस्त कौन हैं। बच्चों के दोस्त की तलाशी ले। अगर आपका बच्चा नशा करने वाले दोस्तों के साथ रहता है तो वैसे बच्चों के साथ रहने से अपने बच्चों को मना कर दीजिए। आपकी नजर बहुत कड़ी होनी चाहिए कि उसके दोस्त कैसे हैं। उसकी रातों पर आप नजर रखिए कि बच्चा रात में कहाँ रहता है, रात में कितनी देर से घर पे आता है। इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है। फिर इसके साथ साथ हर वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को खाली ना रहने दे। अगर वो तालीम हासिल कर रहा है तो ठीक है, उसे अपनी तालीम मुकम्मल करने दीजिए। लेकिन अगर कोई बच्चा तालीम हासिल नहीं कर रहा है तो उसे हरगिज खाली मत रहने दीजिए। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि खाली इंसान शैतान का निवाला बन जाता है। आप अपने बच्चे को शैतान का निवाला बनने से बचाइए और उसे कुछ ना कुछ काम में लगाइए कि बच्चा अगर काम में रहेगा तो उसे इन फालतू चीजों का वक्त नहीं मिलेगा, ना तो वो फालतू दोस्तों की तरफ जाएगा ना ही ये नशे की तरफ जाएगा। इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है। और फिर खुसूसन आखिर में मैं नौजवानों से ये गुजारिश करता हूं कि आप बहुत अहम हैं। अपने आप को बचाइए, अपनी नौजवानियों की हिफाजत कीजिए। अपने आप को यूं नशे में गिरफ्तार करके अपनी सेहत को मत बिगाड़िए। अब भी वक्त है। अगर आप नशा करते हैं तो इसको छोड़ दीजिए। हमने बहुत सारे नौजवान खुद देखे हैं जो कैंसर की वजह से तड़प तड़प कर मरे हैं। अगर आप अपने आप का जायजा ले, अगर आपके मुंह में छाले आ रहे हैं, आपका मुंह नहीं खुल रहा है, तो समझ जाइए कि ये आपको वार्निंग है। ये आपको वार्निंग मिल रही है कि आप कैंसर की तरफ जा रहे हैं। यही वक्त है, रुक जाइए, समझ जाइए, अपने आप को रोक दीजिए, वरना सिवाय पछताने के कुछ हाथ नहीं आएगा। और जब आप पछताना शुरू करेंगे तो आपके पास कुछ बचा नहीं होगा, और फिर आप इस नशे की चीज़ों को छोड़ना भी चाहेंगे तो आपके पास वक्त नहीं होगा और आप सिवाय पछताने के कुछ नहीं कर सकेंगे। लिहाजा नौजवानों से गुजारिश है, अदबन गुजारिश है, और बहुत दिल के गहराइयों से और दिल के दर्द से गुजारिश है कि नशे की इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। जो नौजवान ये कहता है कि ये मुझसे छूटता ही नहीं है, क्या करूं, तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है। अगर इंसान इरादा कर ले, पक्का इरादा कर ले, तो यकीनन छोड़ सकता है। हमने कई बच्चे, कई नौजवान देखे हैं कि इन्होंने पक्का इरादा कर लिया तो इन्होंने छोड़ दिया और हाथ भी नहीं लगाया।
ये आपकी कुव्वत इरादी पर मुनहसिर है कि आपकी कुव्वत इरादी कितनी मजबूत है, आपका विल पावर कितना मजबूत है। आप अपने मजबूती का मुजाहरा कीजिए। आप नौजवान हैं, आप में ताकत है। आप अपने आप को इतना मजबूत कीजिए कि इन चीज़ों को आप छोड़ दें। जब आप ये गुटखा सिगरेट के नशे से अपने आप को बचा लेंगे, तो जहां आपकी सेहत बेहतर होगी, वहीं आप बहुत बड़े गुनाह से भी बच जाएंगे। बस यही बात मुझे आज के वीडियो में कहनी थी। अल्लाह हाफिज।